Students, before this I have explained you about the concept and the features and importance of business environment. Today I am going to explain the component of business environment. Business environment is divided into two parts. First is internal environment and second is external environment. Now what do you mean by internal environment? The factors which are present inside the business which are influencing the business directly and on which the business has full control. बिजनेस इंटरनल एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर ही मौजूद होते हैं और जिसके ऊपर एक बिजनेसमैन का मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल होता है. दैट इज नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स of internal environment? Objectives. Now how objectives means the goals, and the goals can be set up by the business units itself only. Policies, again policies भी business units ही बनाते हैं and the business has full control on it. Production capacity, that according to the size of the business how much goods the organization can produce. Production method, कौन सा method they will use to produce goods. Composition of board of directors, who all will be the board of directors, किस किस को वो board of directors में शामिल करेंगे. मैनेजमेंट इन्फॉर्मिंग सिस्टम, मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन का कौन सा सिस्टम होगा, वेदर इट विल बी अ फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी बिजनेस यूनिट्स ही डिसाइड करेंगे. पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, who all are going to participate in the मैनेजमेंट, कौन कौन मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, पॉलिसीज को बनाने में कौन कौन रहेगा. दिस इज अगेन विल बी अ टोटली लुकआउट ऑफ द personal business units. Managerial attitude, that how they are going to do the work, again this will be a process of the internal environment. Organizational structure, that which structure it is going to be, whether it is the organization will be a formal structure or informal structure. And features of human resources, as we know that human resources are the employees, that how many employees the business is going to recruit, what will be their work, who is going to assign their duty. Again this is the लुकआउट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स ओनली. एंड इन सारी चीजों में बिजनेस का पूरा कंट्रोल है. बिजनेस अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकता है विथ ड्यू टाइम, इसके साथ इसमें चेंजेस ला सकता है. नाउ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स all those factors influence the business, but business has no control on it. Now external फैक्टर, एक्सटर्नल जो आपके एनवायरनमेंट होते हैं, इसमें वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं विच आर वर्किंग फॉर द बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड, जो बिजनेस के बिजनेस कंपाउंड के बाहर की चीजें होती है, बट इनका पूरा इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस के ऊपर. बट एक बिजनेस यूनिट का, बिजनेसमैन का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. नाउ व्हाट आर फर्दर दिस external environment is divided into two parts. One is micro environment or operating environment, and second is macro environment or general environment. Now what do you mean by micro environment or operating environment? See, these are the factors which are influencing the business, but it is influencing only वन फर्म ऑफ द बिजनेस. ये खाली एक ही फर्म को इन्फ्लुएंस करता है, इसका पूरे इंडस्ट्री में एक साथ कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट? फर्स्ट इज कस्टमर्स. नाउ supposedly one firm is producing goods and supplying goods to one customer only. See, customers are now further divided into many parts such as government, household, other business environment, industries, commercial enterprises, etc.
हाउस होल्ड मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि घर की ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की यूज़ का सामान बना रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सामान बना रहा है। कोई है जो कि सिर्फ आपके कमर्शियल यूज के सामान का बना रहा है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीजें बना रहा है। और फॉर नाउ कस्टमर मीन सी supposedly one organization is delivering goods or supplying goods or is producing goods for one customer only. So for any reason, if that customer is stop taking goods from that particular organization, that means that organization, the organization which was supplying goods to the customers is finished. For example, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ गवर्नमेंट को ही सामान सप्लाई करता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही उसकी कस्टमर है, और बिकॉज ऑफ एनी रीजन गवर्नमेंट ने उससे सामान लेना बंद कर दिया है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए सामान प्रोड्यूस करेगा, किसको सामान सप्लाई करेगा। मतलब उसका जो कस्टमर है उधर ही खत्म हो गया, उसके पास और कोई कस्टमर नहीं है, तो फिर उसका लॉन्ग रन में बिजनेस में रहना बंद हो जाएगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें ये समझाता है कि आपका एक नहीं, आपके पास कई सारे कस्टमर्स होने चाहिए, जिससे अगर आज आपका एक कस्टमर चला जाता है तो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए दूसरे कस्टमर्स को सामान बेचते रहे। नाउ सेकेंड इज सप्लायर। सी फॉर लाइक कस्टमर्स, आपके पास सप्लायर भी एक ही है जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपसे सप्लायर का कोई मन में मुटाव हो गया, कोई आपके रेट्स को लेके आपका एक दूसरे से वो नहीं बैठ पाया, सही से काम नहीं हो पाया, सप्लायर ने भी आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया। अगेन इन दैट केस ऑल्सो आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, तो हाउ यू विल प्रोड्यूस थिंग्स। तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन का काम बंद हो जाएगा, एंड दैट द क्लोजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी सर्टेन। आपका ये पक्का हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन बंद ही हो जाएगा। सो अगेन एज पर द बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके पास एक नहीं कई सारे सप्लायर होने चाहिए, जिससे अगर आज एक सप्लायर ने आपको सामान सप्लाई करना बंद कर दिया तो आप दूसरे सप्लायर से रॉ मटेरियल का सप्लाई ले सके, और जिससे आपका प्रोडक्शन बंद ना हो। थर्ड इज कॉम्पिटिटर्स। सी कॉम्पिटिटर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका मार्केट में अच्छा वैल्यू है, लेकिन आपका कोई कॉम्पिटिटर आता है और वो चीप रेट में नए न्यू टेक्नोलॉजी वो नया सामान मार्केट में लॉन्च कर देता है, या आपके प्राइस से लेस प्राइस में सामान बेचना शुरू कर देता है, या फिर वो नए डिस्काउंट स्कीम्स लेके आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो आपके जो चीज़ों को, आपके प्रोडक्ट्स के जगह दूसरे आपके जो कंपटीटर्स हैं उनका प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे भी आपके बिजनेस को और किसी भी बिजनेस यूनिट को नुकसान होगा। नाउ फोर्थ इज marketing intermediaries. See, it is the fifth point, but when I was making the notes, somehow ये मेरे से fourth point बन गया, so you people just treat it as the fifth point, but right now I am explaining it to you as fourth point. Marketing intermediaries. See, they are playing a vital role in the business. Who all are the marketing intermediaries? The agents. Nowadays, agents are playing a vital role in the business. They are the one who is the connection, who is the mediator between the producer and the
कस्टमर्स, वो प्रोड्यूसर से गुड्स लाके और वो फर्दर उसको कस्टमर तक भेजता है। बट किसी रीज़न से एजेंट्स के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई कहासुनी हो गई, उनके साथ उनका कोई मन मिटाव हो गया और एजेंट्स ने जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को कस्टमर से तक ले जाने का काम बंद कर दिया। अगेन आपका प्रोडक्ट, बीइंग अ businessman, it is not possible that the businessman will go door to door to produce their goods. तो again it will be impossible for the business to sell their products, and ये भी business को बंद करने का या फिर नुकसान का रीज़न बन सकता है। Now the fifth one or the fourth one is public. Public are different. Who all are the public? Local public, press, media, these are the public. Now local public बोले तो जो आपने एक इंडस्ट्री सेटअप की, दैट इज इन सम वेसिनिटी, ठीक है, एंड द पब्लिक दोज हु आर रिसाइडिंग देयर, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि इस इंडस्ट्री से हमें नुकसान हो रहा है, आवाज़ आती है या इसका पोल्यूशन निकलता है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर द बिजनेस। उस टाइम में भी बिजनेस को शायद बंद कर देना पड़ जाए और ये बिजनेस का एक नुकसान में रिजल्ट करेगा। एंड सेम वे आपका मीडिया, प्रेस, यू नो दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द बिजनेस, और ये जो है ये आपके मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर इन्होंने किसी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में अच्छा बोल दिया तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स जो है उस प्रोडक्ट की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, दे आर मोर इंटरेस्टेड ऑन दैट प्रोडक्ट। सेम वे आपका लोकल पब्लिक और एक काम करती है, इफ़ दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट, जाने अनजाने दे आर स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट, वो जाने अनजाने खुद ही किसी प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं अपने नॉन लोगों को। सो जो पब्लिक होती है दे आर अगेन प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, इन द इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। बट ये जितने भी ये जो मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट बताया, इनसे एक यूनिट ऑफ द इंडस्ट्री को ही फर्क पड़ेगा, इससे पूरे इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ take the example of Horlicks and Bournvita. These two are health drinks. Now what is happening is इनका रेट है 235 and price, and people customers are happy, but suddenly Bournvita market में प्रोडक्ट लेके आते हैं with the same features, with the same beneficiaries, and the price is 220. Automatically as the price is less, कस्टमर्स विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। और नॉट ओनली दिस, उन्होंने इसके साथ आपका डिस्काउंट भी दे दिया 20 रुपीज़ का, उन्होंने इसके साथ आपको कोई दूसरा ऑफर भी दे दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनके कस्टमर्स जो हैं हॉर्लिक्स के डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और बॉर्नविटा के इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इधर ओनली कौन से फर्म को, कौन से बिजनेस को अफेक्ट करेगा, हॉर्लिक्स को, वेयर एज बॉर्नविटा को भी करेगा, लेकिन ये आपका पॉजिटिव में करेगा एंड हॉर्लिक्स को नेगेटिव में करेगा। ओनली यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री को हेल्थ ड्रिंक के कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली हॉर्लिक्स को फर्क पड़ेगा। सो आपके जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उससे एक ही इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है, सारे इंडस्ट्रीज को फर्क नहीं पड़ता। नाउ सेकेंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट। दे आर अगेन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस बट इन अ डिस्टेंट रिलेशन। दूर से ये बिजनेस एनवायरनमेंट को वो कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं,
again the business has no control on them. Or what is the main feature of the macro environment? They are not influencing, or they are not affecting one business of the industry, they are affecting ऑलमोस्ट ऑल दी बिजनेस. उनके रूल से, उनके चेंजेस से एक फर्म को फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे पूरे होल इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है. एंड एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री, एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द business of the government, implemented by the government, or production technology. These are the some factors of macro environment जिसके इम्प्लीमेंटेशन से उससे एक बिजनेस यूनिट को नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है. अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के होते हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस गवर्नमेंट लेके आता है तो उससे सिर्फ एक बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता, जितने भी यूनिट्स होते हैं, जितने भी आपके फर्म्स होते हैं, उन सबको फर्क पड़ता है. तो एंड सम एग्जांपल्स आर guidelines given by the government, or rules and regulations implemented by the government, or production procedures. And we are done here with the components of business environment. Hope you have understood the topic, and still if you are having any problem, please contact me. Thank you.